Hello everyone. Today we'll study a very important concept from respiratory system medicine, that is respiratory failure. Respiratory failure is a condition which is characterized by either partial pressure of oxygen in the arterial blood supply is less than 60 mmHg, or the partial pressure of carbon dioxide is more than 45 mmHg. Now, as you all know, that when we inspire air, the partial pressure of oxygen in the inspired air from atmosphere is around 160 mmHg. Then it will flow through upper respiratory tract, and when it will reach the lungs, in the lung alveoli, the partial pressure of oxygen is around 100 mmHg. And when this oxygen is exchanged with the deoxygenated blood in the pulmonary artery, then after the exchange of oxygen in the pulmonary capillaries, the blood reaching to the heart in the right atrium and then flowing into the systemic circulation will have partial pressure 90 mmHg in any artery. So, if the partial pressure of oxygen in any artery is less than 60 mmHg, usually what should be the partial pressure? It should be 90 mmHg. But if it is less than 60 mmHg, or if the partial pressure of carbon dioxide in that artery is more than 45 mmHg, since normally the partial pressure of carbon dioxide in an arterial blood supply is 40 mmHg, not more than that. But if it is more than 45 mmHg, so either of these conditions, if it is present, then we will call it as respiratory failure. That is, that respiratory system is failing to supply the enough amount of oxygen or to take up the extra amount of carbon dioxide from the pulmonary capillary. So this is respiratory failure, the definition. Now moving on to the types of respiratory failure, and based on the cause, like what is the mechanism behind development of respiratory failure, there are four types, and the type 1 is due to hypoxemia, so therefore it is also known as hypoxemic respiratory failure. The second is hypercapnic. Hypoxemic matlab कि the amount of oxygen or the partial pressure of oxygen in the arterial blood supply is less than 60 mmHg, that can lead to respiratory failure. Or either the amount of or the partial pressure of carbon dioxide in the arterial blood supply is more than 45 mmHg, then this is hypercapnic respiratory failure. These are usually the more common types. Then comes rare scenarios, but they may cause respiratory failure. The third type is preoperative respiratory failure. Since the word indicates that it is a respiratory failure occurring before operation, and it can be due to lung atelectasis associated with general anesthesia. Since before operating any patient, general anesthesia is administered, and due to this administration of general anesthesia, there might be lung atelectasis in few patients, and which may lead to respiratory failure. And this type of respiratory failure due to general anesthesia before operation is known as preoperative respiratory failure. Then comes the type 4, that is due to hypoperfusion of respiratory muscles. These were the types of respiratory failure. Now we will see the more common types, that is hypoxemic and hypercapnic, in details. These are found very rarely, and the name itself indicates that what can be the mechanism behind that. But these are important, so we will discuss them in details. The first type of respiratory failure is due to hypoxemia. What happened here is the pathogenesis or the mechanism behind development of hypoxemic respiratory failure is either due to diffusion defect or decreased transportation of O2. Now we will see, as I have already told, that the partial pressure of oxygen in the alveoli is 100 mmHg, indicated by capital A. This PaO2 in alveoli is 100 mmHg, and the partial pressure in artery, indicated by small a, this is 90 mmHg. And usually the difference between the partial pressure of oxygen in alveoli and artery is around 10 mmHg, to be exact, in between 5 to 15 mmHg range. So this should be a normal condition. But what happens in an hypoxemic respiratory failure? This difference is altered. Now how this difference can be altered? These can be of two types. First is either there is accumulation of fluid within the alveoli. So when the fluid is accumulated within the alveoli, this fluid will act as a barrier which will interrupt the normal exchange. Therefore, decreased amount of oxygen will reach into the pulmonary capillaries. Or the second mechanism can be
if there is fibrosis around the alveolar wall. So this fibrosis will also interrupt the normal exchange of oxygen with the pulmonary capillaries, and these two conditions will decrease the oxygen transport from alveoli to the blood capillaries. So the mechanism, to be specific, is written as diffusion defect. What is diffusion? That is transport of gases across the membrane. But due to some kind of barrier, this transport is interrupted and less amount of oxygen is diffused, or in simple words, decreased transportation of oxygen. So we can see that the mechanism is diffusion defect or either decreased transportation of O2. Now, for example, usually there should be 90 mm Hg, but due to these barriers, there is 50 mm Hg partial pressure of oxygen in the blood or in the pulmonary capillaries. So here the difference will be increased, that is partial pressure of alveoli minus partial pressure of artery is increased, that is 100 minus 50 is increased. Usually it should be between 5 to 15, but it is 50 mm Hg in this case. And since we know here the inspiration is normal, so the partial pressure of oxygen in the alveoli, that is capital A, is normal, but the partial pressure of oxygen in the blood capillaries is decreased and the difference is increased, and the partial pressure of carbon dioxide in the arterial blood will either stay normal or decreased. Now all these conditions were understood, but it is very interesting that why is partial pressure of carbon dioxide in blood vessel either normal or decreased? It should also be increased, because if oxygen is not able to travel from alveoli into the blood capillaries, so carbon dioxide should also be interrupted to these barriers. So there should be increased partial pressure of carbon dioxide in the blood capillaries, but here it is either normal or decreased. Now what are the mechanisms which will result this decrease or normal carbon dioxide partial pressure in the blood capillaries? These can be two types. The first one is, since you all know, we have studied in respiratory physiology that the diffusion capacity of different gases is different, because the solubility of carbon dioxide is 20 times more as compared to oxygen. So due to this increased solubility, the diffusion of carbon dioxide is more as compared to oxygen. So even after the presence of these barriers, the diffusion of carbon dioxide is not that affected and it will diffuse as normal. So it will stay normal or it can be decreased. So normal, we can see that due to increased solubility across the respiratory membrane, the diffusion of carbon dioxide is more, 20 times more as compared to oxygen. So anyway, it will fight with the barriers and will reach into the alveoli and normalize the partial pressure of carbon dioxide in the blood vessel. But what can lead to the decreased partial pressure? Now, since you all know that blood is having decreased amount of oxygen and the body is facing hypoxemia, so the respiratory centers will get activated and due to that there will be hyperventilation. बट यहाँ ऐसा है कि हाइपोक्सीमिया का रीजन क्या है कि कोई बैरियर आ रहा है उनके बीच में, तो उस बैरियर को नेग्लेक्ट करने के लिए हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा। तो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन में भी ये बैरियर तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो हाइपर वेंटिलेशन में ऑक्सीजन तो इससे उतना ही डिफ्यूज हो पाएगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जितनी बार जल्दी जल्दी रेस्पायर हो रहा है, जल्दी जल्दी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हो रहा है, तो उसका ज़्यादा डिफ्यूजन हो जाएगा। तो ज़्यादा डिफ्यूजन की वजह से उल्टा ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज भी हो सकता है। तो कौन से दो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक हाइपोक्सीमिक रेस्पिरेटरी फेलियर में नॉर्मल या डिक्रीज रहता है? ये सारी कंडीशन तो अंडरस्टूड है। तो इनके पीछे पहला रीजन क्या हो सकता है, solubility of carbon dioxide is 20 times more as compared to solubility of oxygen. Therefore, the diffusion of carbon dioxide is comparatively easy, so it will get diffused easily even after presence of barriers. And the second mechanism behind this is hyperventilation. That is due to hypoxemia, respiratory centers will get activated and this will lead to hyperventilation, leading to decreased partial pressure of carbon dioxide in the blood vessels. Now moving on to the causes. As I have told, what are the mechanisms? It is due to decreased diffusion or either decreased transport of oxygen across the respiratory membrane. And there can be either fluid deposition or there can be fibrosis around the alveoli. So the conditions are alveolar flooding. Flooding means something related to fluid. So alveolar flooding is, that is fluid in the alveoli. And this is seen in severe patients of pneumonia and acute respiratory distress syndrome. This I have already explained in previous videos. You can go there and check. So in a patient of severe pneumonia or ARDS, there is alveolar flooding which can lead to hypoxemia leading into respiratory failure. The second condition is fibrosis.
or also known as interstitial lung disorders. The third condition can be pulmonary embolism. This embolism also I have discussed in previous videos. Due to the thrombus in the pulmonary capillaries, there is decreased diffusion across this membrane, therefore leading to hypoxemia. So all these conditions will lead to type 1 respiratory failure. Now moving on to the type 2 of respiratory failure, that is hypercapnic or due to increased partial pressure of carbon dioxide in the blood, that is more than 45 mmHg. And here the mechanism is either hypoventilation or decreased respiratory efforts. अब हम देखते हैं कि डिक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट का क्या मतलब है, फिर ये अपने आप समझ में आ जाएगा। डिक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट का मतलब क्या है कि नॉर्मली एक इंसान कितना 12 to 16 टाइम्स ये रेस्पिरेटरी रेट होता है पर मिनट, लेकिन अगर वो 10 से 12 ही करने लग जाए, उसकी रेस्पिरेटरी 10 से 12 पर मिनट आने लग जाए, तो इससे क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में जो डिफ्यूज होने के लिए एल्वेलाई में आनी चाहिए थी, अब वो उतना इंस्पायर नहीं कर रहा है, तो उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सिमिलरली जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा है, वो एक्सपायर होने वाली थी। अगर 12 to 16 टाइम एक्सपिरेशन होता तो ये चीज़ हो जाती, बट अगर 10 से 12 टाइम एक्सपायर कर रहा है, तो जो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर स्टे करेगा, जिसकी वजह से उसका प्रेशर पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये हाइपर कैप्निक कंडीशन हो जाएगी। तो डिक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट को ही अपन क्या भी बोलते हैं, हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन मतलब कि जो एल्वेलाई के अंदर एयर का मूवमेंट है वो कम हो रहा है। तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं कि या तो पेशेंट जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है उसका डिक्रीज हो गया, कैसे हो सकता है, उसकी मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, रेस्पिरेटरी मसल्स, जैसे आपको पता है कि डायफ्राम हो गया या फिर जो इंटरकोस्टल मसल हो गई, तो अगर इनके अंदर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई न्यूरोमस्कुलर डिसजंक्शन ऐसा कुछ है, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी एफर्ट डिक्रीज हो जाएगा। या फिर जो उसमें हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है। हाइपोवेंटिलेशन कब हो सकता है कि उसके जो पल्मोनरी ट्रैक्ट है, जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो उसके अंदर कोई ना कोई, जैसे सीओपीडी का पेशेंट हो गया, तो उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो जो रास्ता अवेलेबल है एयर के मूवमेंट के लिए, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसकी वजह से डिक्रीज अमाउंट ऑफ एयर रीच करेगा एल्वेलाई में, और उसकी वजह से डिक्रीज ही ऑक्सीजन की सप्लाई होगी ब्लड को, और डिक्रीज अपटेक होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वेलाई के अंदर। तो हाइपोवेंटिलेशन और डिक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट ये क्या कर सकते हैं, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हाइपोवेंटिलेशन हो चाहे डिक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट हो, दोनों में क्या होगा कि जो एल्वेलाई के अंदर एयर आ रही है, that air will have less amount of partial pressure of oxygen because the amount of air reaching into alveoli is decreased either due to hypoventilation or due to decreased respiration. So, for example, we will take it as 60 mmHg. Normally, what should be the partial pressure of oxygen in alveoli? It should be 100 mmHg. But for example sake, we will assume that 60 mmHg is reaching into the alveoli. So, only 60 mmHg is reaching, and as you all know that while diffusion, some of it will not diffuse. For example, 90% of air reaching into the, or oxygen reaching into the alveoli will get diffused across respiratory membrane. But 90% of this will be around 50 mmHg. यहाँ 100 आ रहा होता तो कितना होता है, इसमें 90 होता, लेकिन अब तो 60 ही आ रहा है, तो 60 आ गया तो कितना होगा, 50 mmHg होगा। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी यहाँ कम हो रहा है, और सिंस यहाँ ऑक्सीजन एयर कम आ रही है तो कम ही अपटेक करेगा CO2 का। तो इस कंडीशन में दोनों चीजें देखने को मिलेगी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम है और हाइपरकेप्निया, यानी कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो ज्यादा होगा ही होगा। तो यहाँ अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई इज डिक्रीज्ड। समझ में आ रहा है कि उसको सीओपीडी था या फिर उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट डिक्रीज हो गए, तो जो एयर आ रही है वो डिक्रीज्ड है, उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो रहा है। यहाँ कोई बीच में बैरियर नहीं है, लेकिन अब आए 60 mmHg है तो उसको 90 कहाँ से दे देगा, जितना होगा उसमें से भी कुछ दे नहीं पाएगा, और जो दे पाएगा वो उतना हो नहीं पाएगा जितना होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ डिफरेंस है वो तो नॉर्मली होगा। पहले 100 माइनस 90 कितना हो रहा था, 10 हो रहा था, यहाँ 60 माइनस 50 भी 10 ही हो रहा है, तो जो डिफरेंस है ना वो नॉर्मल होगा। तो अपन ने क्या ध्यान रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई डिक्रीज हो जाएगा, आर्टरी भी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो डिफरेंस है दोनों का वो नॉर्मल होगा। 60 माइनस 50 कितना हो गया, 10 ही हो गया, और 10 ही होना चाहिए था। और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में वो इंक्रीज होएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि पीएच बढ़ जाएगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो पीएच बढ़ रही है इसको अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। So the increase in pH of blood due to increased amount of carbon dioxide in the vessel is known as respiratory acidosis. तो अगर ये वर्ड आ जाए तो भी क्या ध्यान रखना अपन को कि कौन सा केस है, अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से रिलेटेड होता है तो उसका क्या मतलब है, हाइपरकेपनिया है, और हाइपरकेपनिया क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकता है। तो एक क्वेश्चन जब अपन सोल्व करेंगे तो ये काम आएगा। अब इसके कोज क्या हो सकते हैं, इसके कोज के लिए मैंने पहले निमोनिक बनाया। निमोनिक क्या है, सीओपीडी। अब सीओपीडी निमोनिक भी है और इसका कोज भी है, तो थोड़ा रिलेट करने में और याद रखने में ईजी होगा। सी किससे स्टैंड कर रहा है, सेंट्रल। अब सेंट्रल क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड वाला सेंटर होगा।
तो यहाँ क्या हो सकता है, देयर कुड बी आइदर ब्रेन स्टेम इंजरी, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सेंटर्स, जैसे कि पॉन्स में मेडुला में है, उनमें कोई इंजरी हो जाए, और इट कैन बी ड्यू टू नार्कोटिक्स। इफ नार्कोटिक ले रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये डायरेक्टली एक्ट करते हैं किस पे, रेस्पिरेटरी सेंटर्स। सिंस नार्कोटिक्स एक्ट डायरेक्टली ऑन द रेस्पिरेटरी सेंटर, so the use of narcotics can reduce the respiratory efforts leading into hypercapnia and ultimately may result into respiratory failure. The second is obstruction, which is very easily understood, and obstruction is seen in severe COPD or due to any foreign body occlusion in the respiratory tract. The third cause is peripheral. P for peripheral. Peripheral is neuromuscular disorder. That the nerve supplying the muscles of respiratory system is either not supplying or not stimulating the muscles appropriately. For example, अगर मान लो कि पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो पॉन्स उसका स्टिमुलेट हो गया और पॉन्स न्यूरो भेजेगा मसल्स के पास, जो एक्सपिरेटरी मसल्स हैं एब्डोमेन की और जो ये चेस्ट की, वहाँ जाके डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, इन सबको स्टिमुलेट करेगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको जल्दी जल्दी करो। फॉर एग्जाम्पल 12 to 16 टाइम कर रहे थे, लेकिन नहीं, अब सिंस एक्सरसाइज कर रहा है तो अपन को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, तो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाओ, तो वो मसल्स कर देती हैं। बट अगर ऐसा हो जाए कि ये न्यूरो उन मसल्स तक पहुँचे ही नहीं, या पहुँच जाए और वो मसल्स उसको अब मतलब मसल्स उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मना कर दें, यानी कि अगर या तो बन नहीं रहा, जैसे कि ये केस हो गया, अगर वो रेस्पिरेटरी सेंटर ही डैमेज हो गए तो वो कैसे भेजेंगे, भेजने वाला ही बंद हो गया, या फिर तो भेजने वाला बंद हो गया, या फिर भेज दिया लेकिन वो जा नहीं पा रहा, पहुंचा नहीं, नर्व सप्लाई नहीं हो रही। अगर उस मसल को नर्व सप्लाई नहीं होगी तो वो कैसे जाएगा, या फिर क्या हो सकता है कि मसल के ऊपर जो उसके रिसेप्टर है वो गायब हो सकते हैं, वो काम नहीं कर रहे। तो ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से भी क्या हो सकता है, उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉज इज डायफ्रामेटिक इंजरी। ये वेरी ऑब्वियस है, अगर डायफ्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट मसल है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अगर डायफ्राम ही काम करना बंद कर देगा, उसके अंदर कोई इंजरी हो जाएगी, तो जो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स हैं वो तो डिक्रीज हो ही जाएंगे। तो ये सारे कॉज किसके हो सकते हैं, हाइपरकेपनिया के। हाइपरकेपनिया क्या है, increased amount of carbon dioxide in the blood, and the increased amount of carbon dioxide in the blood will lead to increase in the pH, known as respiratory acidosis. Now the most common lung disease responsible for type 2 respiratory failure is severe COPD. यानी कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कौन सी नीचे जो ऑप्शन में दी हुई लंग डिजीज है उनमें से कौन सी लंग डिजीज मोस्ट कॉमन है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर कॉज करने के लिए, तो अपन को क्या चूज करना, ऑप्शन सीवियर सीओपीडी। तो अपन ने डिटेल में देख लिया टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 3 मैंने आपको बता ही दिया, ये कॉमन नहीं है इसलिए अपन इनको इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनके डिटेल्स अपने काम नहीं आएंगी। बस ये किस केस में हो सकता है, और सर्जरी से पहले जनरल एनेस्थीसिया की वजह से लंग एटलेक्टेसिस हो जाए, या फिर एक शॉक का पेशेंट है उसमें हाइपोपरफ्यूजन की वजह से हो सकता है। टाइप 1 और टाइप 2 अपने डिटेल में देख लिए, उनके कोज देख लिए और उनके फीचर्स देख लिए और उनका मैकेनिज्म देख लिया कि वो किस किस वजह से हो सकते हैं। अब अपन चलते हैं कि अगर रेस्पिरेटरी फेलियर का एक पेशेंट है, देन हाउ वी विल मैनेज ए पेशेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। So the initial treatment of respiratory failure is supplement ऑक्सीजन, यानी कि उसके अंदर डेफिनेटली चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, दोनों में ही जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो तो ब्लड में कमी है, तो सबसे पहले तो उसको ऑक्सीजन ही देंगे, और ऑक्सीजन देने के बाद क्या करेंगे, उस पेशेंट का जो कोज है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, जैसे सीओपीडी की वजह से हो रहा है, निमोनिया की वजह से हो रहा है, उसको ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया कि एंटीबायोटिक्स फॉर निमोनिया। अब निमोनिया है, निमोनिया जब अपन पढ़ेंगे तो उसका डिटेल मैनेजमेंट अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए अपन इतना आइडिया लेते हैं कि निमोनिया किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो एंटीबैक्टीरियल देंगे, सो दैट निमोनिया उसका सही हो जाए। सो एंटीबायोटिक्स फॉर निमोनिया, वी विल ट्रीट द cause of respiratory failure along with oxygen supplements। और ये करने के बाद में इवन आफ्टर दिस इफ पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन वी विल गो फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन। नाउ मैकेनिकल वेंटिलेशन, व्हाट इज मैकेनिकल वेंटिलेशन, इट इज अ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। These can be of two types. The first one is invasive mechanical ventilation. Invasive means कि कुछ इन्वेड करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कुछ इन्वेड करके और फिर उसको वेंटिलेट किया जा रहा है। सो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन डिलीवर्ड थ्रू एंडोट्रेकल ट्यूब। सेकंड टाइप इज NIV, दैट इज नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। हियर द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज डिलीवर्ड थ्रू टाइट फिटिंग फेस मास्क, यानी कि यहाँ अपन कुछ भी ऐसा बाहर से इन्वेड नहीं करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, कोई ट्यूब वगैरह कोई पाइप वगैरह ऐसा डालने की लोड नहीं है अपन को। अपन सिंपली एक टाइट फेस मास्क लगा के और उसके थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई देंगे। नाउ वी विल सी what is invasive mechanical ventilation, what is the arrangement of invasive mechanical ventilation, and when should we opt for invasive mechanical ventilation, यानी कि कौन से टाइप का रेस्पिरेटरी फेलियर है जिसमें कि इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन अपन
पहले प्रीफर करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई पेशेंट आ गया उस पर अपन ट्राई मार रहे हैं कि पहले नॉन इन्वेजिव कर लेते हैं फिर इन्वेजिव कर लेते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के रेस्पिरेटरी फेलियर होते हैं जिनमें अपन को पहले से ये मान के चलना होता है कि अगर ये वाला है तो अपन को नॉन इन्वेजिव करना है या फिर इन्वेजिव करना है। सबसे पहले नाउ वी विल सी द सेटअप ऑफ इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये पेशेंट है, पेशेंट इस पोजिशन में लाई कर रहा है, उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब अपन ने दी है और इस एंडोट्रेकियल ट्यूब से उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। जो ऑक्सीजन पंप हो रहा है वो एक मैकेनिकल वेंटिलेटर से हो रहा है। अब मैकेनिकल वेंटिलेटर में यहाँ रीडिंग वगैरह होंगी, इसको अपन सेट कर सकते हैं कि अपन को प्रेशर क्या रखना है इसका। ये प्रेशर वाली पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अपन जब भी मेडिसिन में रेस्पिरेटरी सिस्टम के और टॉपिक्स पे जब डिस्कस करेंगे तो उनमें हर टॉपिक के साथ साथ ये जो प्रेशर है इसको मेंटेन करने का अलग तरीका होता है। तो ये हो गया इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। यहाँ पे क्या होगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब होगी। अभी एंडोट्रेकियल ट्यूब या फिर दूसरा अल्टरनेटिव क्या है इसका, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। यानी कि या तो ओरल कैविटी के थ्रू अपन एक इंजेक्ट कर रहे हैं, ये मोर कॉमन है, ज़्यादा किया जाता है और ईजी होता है प्रैक्टिस में। इसके में क्यों कोई कटवट लगाने की जरूरत नहीं है अपन को। अपन पेशेंट का जो लिप्स हैं उनको एक्सपेंड करेंगे और उसके अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट कर देंगे और वहां से उसको वेंटिलेट करेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ ट्रेकिया पे, यहाँ पे अपन कट लगाएं और यहाँ से कोई पाइप इंसर्ट कर दें। जैसे कि ये कब हो गया कि मान लो कि ये वाला पेशेंट को ये रोड एक्सीडेंट गया है जिसमें जो उसका फेस है वो मतलब बहुत ही सीवियर तरीके से उसका डैमेज हो गया। तो वहाँ पॉसिबल नहीं है कि अपन उसमें से एंडोट्रेकियल ट्यूब को अंदर इंसर्ट कर दें। तो वहाँ अपन किसके लिए जाएंगे, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के लिए। तो ये दो तरीके हैं इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन के। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन सिर्फ अनकॉन्शियस पेशेंट को दिया जाता है। अब ये तो आप भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप कॉन्शियस हैं, आप सब चीज़ें फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप ये जो ट्रेकिया है उसके अंदर कोई चीज़ आप इंसर्ट थोड़ी करने देंगे। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये चीज़ें कॉन्शियस स्टेट में पॉसिबल नहीं है। तो इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन इज ऑलवेज परफॉर्म्ड इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट दैट इज ऑन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया पे है पेशेंट, जैसे कि ये देखो ये अनकॉन्शियस है, इसको एनेस्थीसिया दे रखा है, फिर उसके मुंह से अपने एंडोट्रेकियल ट्यूब उसके ट्रेकिया में इंसर्ट कर रखी है। ये मैकेनिकल वेंटिलेटर है और यहाँ से उसको ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। जो इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन है इसको अपन सिक्योर्ड एयरवे भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि उस पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर उसका एयरवे हमने सिक्योर कर रखा है और फिर फला फला चीजें हैं, तो सिक्योर्ड एयरवे का क्या मतलब है, पेशेंट ऑलरेडी इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, इसका क्या मतलब है, सिक्योर्ड एयरवे है। ये दोनों सिनोनिम है। अब इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन इज प्रिफर्ड इन टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। यानी कि अपन को पता लग गया कि जो रेस्पिरेटरी फेलियर है वो ड्यू टू हाइपोक्सीमिया है, तो अपन ने नॉन इन्वेजिव देना ही नहीं है, अपन सबसे पहले ही इन्वेजिव ही देंगे उसको। या फिर अगर फॉर एग्जांपल वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है या फिर उसकी कोई ऐसी इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसने कॉन्शियसनेस लूज कर दी, तो बंदा कॉन्शियस नहीं है, तो कॉन्शियस नहीं है तो उसको नॉन इन्वेजिव नहीं दे पाएंगे। वो मैं बताऊंगा नॉन इन्वेजिव कैसा होता है और उसमें कॉन्शियस होना क्यों जरूरी है। लेकिन ये मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें अनकॉन्शियस होना क्यों जरूरी है। तो आपने किया नहीं लेकिन पहले से अनकॉन्शियस है, या फिर टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है, तो अपन उसमें नॉन इन्वेजिव देंगे। क्योंकि दोनों में क्या है, प्रॉब्लम इन ऑक्सीजन एक्सचेंज है। अब ऑक्सीजन एक्सचेंज का क्या मतलब हो गया, मैंने आपको बताया था कि या तो उसमें फ्लूइड हो जाए या फिर बाहर फाइब्रोसिस हो जाए। तो ये चीजें हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन होगा तो ये अंदर तक वो ट्यूब जाएगी और इससे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो सकता है। यानी कि एक तो अपन प्रेशर लगाते हैं ओरल कैविटी पे, नोज के ऊपर, यहाँ की ओपनिंग पे ओरल कैविटी या फिर नोज की ओपनिंग पे फेस मास्क के प्रेशर लगाएंगे ऑक्सीजन का या एयर का। एक अपन उस ट्यूब को थोड़ा अंदर तक ले जा रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, और जस्ट बिफोर वो जो डिवाइड हो रहे हैं ब्रोंकाई, वहां तक अपन प्रेशर दे रहे हैं। तो जो यहाँ वाला प्रेशर है ना वो ज्यादा अच्छा तरीके से फील होगा एल्वेलाई पे। तो जो प्रेशर होगा ना उसकी वजह से क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रखा था, निमोनिया का पेशेंट है, तो इस पर जो प्रेशर प्रेशर आएगा ना उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, इसकी मूवमेंट ऐसे हो जाएगी। यानी कि धक्के से ऐसे हवा लगेगी तो इसकी मूवमेंट हो जाएगी और इससे जो डिफ्यूजन है ना ऑक्सीजन का वो इजी हो जाएगा। तो जहां भी ऑक्सीजन की एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ रही थी उस केस में आईएमवी देंगे, क्योंकि यहाँ पे एंडोट्रेकल ट्यूब ज्यादा अंदर तक जा रही है और उसकी वजह से जो पॉजिटिव प्रेशर है वो डायरेक्टली फील हो रहा है एल्वेलाई को, और उसकी वजह से डिफ्यूजन उसका बेटर हो जाएगा। अब देखते हैं नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन क्या होता है। नॉन इन्वेजिव में सबसे पहली चीज तो ये है कि नॉन इन्वेजिव कब देंगे, जब बंदा कॉन्शियस है। अब यहाँ देख लो ये फेस मास्क लगा रखा है इसने, सेम इसने भी लगा रखा है, और ये देखो ये कॉन्शियस है। तो अगर पेशेंट कॉन्शियस है तभी अपन उसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन दे सकते हैं। ये तो सबसे पहली कंडीशन होगी। दूसरी क्या है कि जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन है वो प्रीफर्ड किस में होता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में। क्योंकि यहाँ अपन ने क्या मैकेनिज्म पढ़ा था कि उसमें हाइपो वेंटिलेशन है या फिर उसका जो रेस्पिरेटरी जो उसके एफर्ट्स हैं वो डिक्रीज है। वहाँ एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एयर उसके एल्वेलाई में जा ही कम रही है, या तो वो ले कम रहा है
या फिर हाइपोवेंटिलेशन है, या फिर उसके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो काम कम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इनफ एयर ले नहीं पा रहा था, इंस्पायर नहीं कर पा रहा था, तो जो नॉन इन्वेजिव है, it will provide enough air through positive pressure at nasal plus oral openings, and also it is preferred over invasive mechanical ventilation in severe COPD patients. अब severe COPD patients में भी अपन कभी इन्वेजिव वो नहीं देते, अपन नॉन इन्वेजिव देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ज्यादा प्रेशर पहुंच रहा है ना नीचे, मैंने जैसे बताया कि इसमें क्या हो रहा था कि जो बाइफर्केशन होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ब्रोंकाई में, उस तक एंडोट्रेकल ट्यूब जाके और प्रेशर देगी तो ज्यादा अच्छा फील होगा एल्वेलाई पे। लेकिन अगर उस पेशेंट को सीवियर सीओपीडी है, तो सीओपीडी में क्या होता है, जो एल्वेलाई होता है ना उसके ऊपर बुल्ला बन जाते हैं, जो रेस्पिरेटरी बुल्ला बन जाते हैं एल्वेलाई पे। और अगर ये ज्यादा प्रेशर से जाके और उन बुल्ला पे अगर एयर स्ट्राइक करेगा ना, तो बुल्ला रेप्चर हो जाएगा। और बुल्ला रेप्चर हो गया तो क्या हो गया, जो एल्वेलाई के अंदर एयर अपनी दी थी वो एयर प्लूरल कैविटी में आ जाएगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, निमोथोरेक्स। वो और भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो अपन कम प्रेशर वाले देंगे, और कम प्रेशर कहाँ हो सकता है, जब अपन प्रेशर ओरल कैविटी पे और नेजल ओपनिंग पे दें, तो यहाँ से ज्यादा ज्यादा वो प्रेशर कम हो जाएगा, और इतना ही होगा जिससे उसका काम हो जाए, ना कि उसके बुल्ला वगैरह रेप्चर हो जाए। तो सीवियर सीओपीडी का पेशेंट है तो उसमें बुल्ला है, वहाँ अपन इन्वेजिव वाला नहीं देते, उसमें भी नॉन इन्वेजिव देंगे। और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में भी यही देंगे, क्योंकि उसके जो बुल्ला है उसमें रेप्चर हो गया, उसकी वजह से क्या हो सकता है, एयर लीक हो सकती है प्लूरल कैविटी में, लीडिंग इनटू निमोथोरेक्स। अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं हुआ नॉन इन्वेजिव से, तो अपन को फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, अपन को इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन देना पड़ेगा, चाहे उसके बुला रेप्चर हो रहे हो, चाहे न्यूमोथोरिक्स हो, क्योंकि अब बंदा मरने से बचा है, या फिर उसके न्यूमोथोरिक्स को देखें। अब बंदा इंप्रूव ही नहीं कर रहा, उसकी सिचुएशन और बिगड़ती जा रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि फिर अपन देखेंगे कि यार यहाँ तो इसको तो बुला है, उसके रेप्चर रेप्चर हो गया, न्यूमोथोरिक्स हो गया, वो अपन बाद में उनको मैनेज करते रहेंगे जितना मैनेज हो पाएगा। अभी अपना काम क्या है कि नॉन इन्वेजिव से उसको इन्वेजिव के ऊपर डाल दो, रिगार्डलेस ऑफ साइड इफेक्ट्स। अब क्लिनिकल सिचुएशन बताता हूँ आपको दो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। अगर एक पेशेंट आया, सीओपीडी का पेशेंट है, दोनों पेशेंट है ए और बी, दोनों सीओपीडी के हैं, दोनों में टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है। और अपन ने क्या पढ़ा था अभी कि सीओपीडी भी बुल्ला होता है, और टाइप 2 में भी अपन दोनों कंडीशन में क्या देते हैं, नॉन इन्वेजिव देते हैं, एनआईवी देंगे, वेंटिलेशन। लेकिन यहाँ बस फर्क क्या है कि पेशेंट कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कौन से पे जाएंगे। यानी ऐसा कोई फोर श्योर नहीं है कि सीओपीडी का है तो अपन पहले नॉन इन्वेजिव ही देंगे। नॉन इन्वेजिव प्रीफर्ड है, लेकिन बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। नॉन इन्वेजिव देंगे अगर पेशेंट कॉन्शियस हुआ तो अगर सीओपीडी का पेशेंट है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है और कॉन्शियस है, तो अपन क्या देंगे, एनआईवी देंगे उसको, नॉन इन्वेजिव देंगे। और इससे अगर सिचुएशन इंप्रूव होगी तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो अपन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पे जाएंगे। लेकिन अगर पहले से ही पेशेंट आया तो सीओपीडी का था, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, लेकिन वो अनकॉन्शियस है, तो अब अनकॉन्शियस है तो उसके बंदे के अगर चेहरे पे आपने मास्क लगा भी दिया, तो अगर बंदा अनकॉन्शियस है तो वो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स कैसे कर पाएगा? तो अनकॉन्शियस है तो उसके चेहरे पे मास्क लगाने का कोई मतलब नहीं है। चेहरे पे मास्क तभी काम आता है जब वो रेस्पिरेशन इजिली कर पा रहा है, एयर को इंस्पायर कर रहा है, एक्सपायर कर रहा है, उसकी रेस्पिरेटरी मसल्स काम दे रही है। लेकिन अगर पहले से अनकॉन्शियस है तो अपन सीधा ही नॉन इन्वेजिव पे जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ सीओपीडी और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। लेकिन अगर टाइप 1 है या अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो ऑलवेज आईएमडी। टाइप 2 है, पेशेंट कॉन्शियस है, तो अपन एनआईवी पे जाएंगे, एनआईवी से इंप्रूव नहीं होगा तो आईएमवी पे जाएंगे। अब एनआईवी वैसे देखने में सही लग रहा है कि इसमें कुछ इंसर्ट नहीं करना पड़ रहा, पेशेंट को एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ रहा, या फिर पेशेंट की ट्रेकिया को उसको कभी कट नहीं लगाना पड़ रहा, तो ये शायद बेटर सुटेबल ऑप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे पहले क्या आएगा, अनकॉन्शियस पेशेंट। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि अनकॉन्शियस है तो उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी अपना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात क्या होगा, उसमें कफ रिफ्लेक्स नहीं होगा। अब कफ रिफ्लेक्स एक कॉन्शियस पेशेंट में हो सकता है, और कफ रिफ्लेक्स नहीं होगा तो क्या होगा कि जो ओरल कैविटी का सीक्रेशन है बेसिकली, तो वो क्या होता है कि कफ के फॉर्म में वो जैसे ही एल्विलाई के अंदर कुछ सीक्रेशन जाने लगेंगे तो वो कफ के फॉर्म में वापस ओरल कैविटी में आ जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट में कफ रिफ्लेक्स नहीं है तो जो सीक्रेशन है ओरल कैविटी के, वो कहाँ चले जाएंगे, उस पॉजिटिव प्रेशर के जो फेस मास्क के थ्रू अपने लगाया था उसके थ्रू, मास्क के थ्रू चले जाएंगे एल्विलाई में, और वापस बाहर नहीं आएंगे। एल्विलाई के अंदर वो जाके सीक्रेशन डिपोजिट होते जाएंगे, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिना निमोनिया के अपने उसको निमोनिया कर दिया, यानी कि उसके एल्विलाई में फ्लूइड अक्यूमुलेट करवा दिया। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में कफ रिफ्लेक्स नहीं होता, कॉन्शियस पेशेंट में अपन एनआईवी देते हैं, वरना कफ रिफ्लेक्स नहीं होगा तो सिक्रेशन एल्विलाई में चले जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, अल्टर्ड सेंसोरियम। अल्टर्ड सेंसोरियम का क्या मतलब हो गया, वही बात फिर से कि कॉन्शियसनेस से रिलेटेड आ गया, वो बंदा उसकी दिमागी हालत जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो उसकी वजह से अल्टर्ड कफ रिफ्लेक्स होगा। अब वो उसको पता ही नहीं है कफ रिफ्लेक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे कफिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, जो सिक्रेशन है वो एल्विलाई में जाकर डिपोजिट हो जाएंगे। तीसरा क्या है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का भी क्या मतलब हो गया, इसका दूसरा मीनिंग ये होगा कि पेशेंट अनकॉन्शियस है। अगर हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी है, तो हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी तो क्या ही हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हो गया,
तो हेमोडायनिक अनस्टेबिलिटी है तो कभी भी उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो अपन इस केस में भी रिस्क नहीं लेते नॉन इन्वेजिव देने का। अगर हेमोडायनिक अनस्टेबिलिटी है, अपन ने नॉन इन्वेजिव पे डाल दिया और उसको वाइल वेंटिलेटिंग उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया और पता भी नहीं लगा कि कब वो अनकॉन्शियस हो गया, तो ये कंडीशन भी बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग है। तो अपन इसमें भी पहले से ही इन्वेजिव देते हैं। ये हो गया अनकोऑपरेटिव पेशेंट। अब अनकोऑपरेटिव पेशेंट है यानी कि वो बार-बार मास्क उतार दे रहा है। आपने उसको मास्क लगाया कि वेंटिलेशन होता रहे और वो बार-बार मास्क उतार रहा है। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो कोऑपरेट नहीं कर रहा हो, तो उसको भी अपन एनेस्थीसिया देके और उसको बेहोशी की हालत में लाके और नॉन इन्वेजिव देते हैं। उसमें सॉरी इन्वेजिव देते हैं, नॉन इन्वेजिव नहीं देते। अगला हो गया रिसेंट नेज़ल सर्जरी। अब रिसेंट नेज़ल सर्जरी का क्या मतलब है कि पॉजिटिव प्रेशर देंगे अगर किसी की अभी भी नेज़ल सर्जरी हुई है और पॉजिटिव प्रेशर दिया मास्क से। अब ट्यूब वाला तो क्या था, उसमें नाक का तो मतलब नोज़ का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। डायरेक्ट ट्यूब जा रही थी ट्रेकिया के अंदर, लेकिन यहाँ तो ओरल और नेज़ल ओपनिंग दोनों से पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हैं अपन। तो जो प्रेशर है ना वो क्या कर सकता है, रप्चर कर सकता है किसको, सर्जिकल वाउंड को। यानी कि नेज़ल कैविटी में जहाँ भी अपन ने सर्जरी करी है वहाँ वाउंड होगा, और अगर रिसेंट सर्जरी थी तो वाउंड अभी हील नहीं हुआ, तो अगर इस पे पॉजिटिव प्रेशर लगेगा तो ये रप्चर हो सकता है और इसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाएगी, और ब्लीडिंग जो प्रेशर है ना उसके साथ वो ब्लीडिंग कहाँ चली जाएगी, एलुलाई के अंदर, और वहाँ जाके डिपॉजिट हो सकती है। तो ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है किसका, नॉन इन्वेजिव का, क्योंकि वहाँ पे नेजल ओपनिंग पे पॉजिटिव प्रेशर मिल रहा है। अगला हो गया एक्टिव जीआई ब्लीडिंग। एक्टिव जीआई ब्लीडिंग क्या होता है, जीआई ब्लीडिंग किससे मार्क होता है, ब्लडी वॉमिटिंग होती है पेशेंट को। अगर पेशेंट को जीआई ब्लीडिंग है तो उसको ब्लडी वॉमिटिंग्स होती है। अब एक पेशेंट नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे है और उसको जीआई ब्लीडिंग है, तो उसको जब ये जो वॉमिट होगी ब्लडी, अब वो कहाँ जाएगी, ओरल कैविटी में आएगी, और उस टाइम पे ऐसा थोड़ी है कि वो मास्क हटा के तुरंत कर देगा वॉमिट। तो जो वॉमिट ब्लडी वॉमिट आ रही है ओरल कैविटी में, अब उसके साथ साथ बाहर से मास्क से प्रेशर लग रहा था, तो वो जो वॉमिट है, ब्लडी वॉमिट है, उस प्रेशर की वजह से वो चली जाएगी ट्रेकिया में और जाके और एल्वेलाई में डिपॉजिट हो सकती है। यानी कि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनको वो अफेक्ट करेगी और वहाँ भी निमोनिया की सिचुएशन हो जाएगी। यानी अपन उसको वेंटिलेशन दे रहे थे, सीओपीडी का पेशेंट था, नॉन इन्वेजिव से काम चल रहा था, लेकिन जीआई ब्लीडिंग भी थी, उसको अपन ने निमोनिया जैसे टाइप 1 भी करा दिया उसको। अब टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो जाएगा। तो इन सारी कंडीशंस में अपन नॉन इन्वेजिव ना करके इन्वेजिव करते हैं। अब एक क्वेश्चन के थ्रू अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 25 ईयर मेल इज ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट हु हैज फाउंड अनरिस्पॉन्सिव। अभी अनरिस्पॉन्सिव का क्या मतलब हो गया कि अनकॉन्शियस है। तो एक तो ये चीज़ अपन ने ध्यान में रखनी है कि बंदा क्या है, अनकॉन्शियस है। आगे जाके मैनेजमेंट में काम आएगा। एट होम ही हैज़ हिस्ट्री ऑफ आईवी ड्रग्स एंड एचआईवी, उसको एचआईवी भी है। हिज लास्ट CD4 काउंट वाज लेस देन 200 पर मिलीलीटर। अब ये तो होना ही था, अगर एचआईवी है तो उसका जो CD4 काउंट है वो डिक्रीज होगा। ऑन इनिशियल इवोल्यूशन बीपी इज 20/75 mmHg। पल्स उसकी क्या है, 105 बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट क्या है, 8 पर मिनट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 से 16 होना चाहिए था, 8 ही है। तो ये क्या हो सकता है, किसको इंडिकेट कर रहा है, ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर को इंडिकेट कर रहा है। अब देखेंगे कैसा क्वेश्चन होता है, उसमें क्या होता है, SpO2 83 है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम है उसका। एबीजी रिवील्स पीएच 7.16 है। जो PaCO2 है वो 70 mmHg है और PaO2 55 mmHg है। अब PaO2 कितना है, लेस देन 60 है, तो ये क्या हो सकता है, हाइपोक्सीमिक भी हो सकता है। PaCO2 मोर देन 45 है, 70 mmHg, तो ये हाइपर कैपनिक भी हो सकता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल हो गया, मैनेजमेंट में उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अनरिस्पॉन्सिव है, आईवी ड्रग्स यूज करता है, एचआईवी का पेशेंट है, रेस्पिरेटरी फेल उसको इंडिकेट कर रही है टाइप 2 है, PaCO2 भी इंडिकेट कर रहा है टाइप 2 है, लेकिन PaO2 इंडिकेट कर रहा है टाइप 1 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी फेलियर पॉसिबल है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो इसमें अपन को हमेशा याद रखना है कि जब भी PaCO2 ज़्यादा है और PaO2 कम है, हाइपोक्सीमिक और हाइपर कैपनिक दोनों कंडीशन है, तो अपन को पहले हाइपर कैपनिक देखना है, ये ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ज़्यादा सीवियर है, तो अपन पहले टाइप 2 के साथ जाएंगे, क्योंकि PaCO2 उसका ज़्यादा है और ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। तो जब भी इन दोनों में से एक चूज करना हो, दोनों की पॉसिबिलिटी और एक चूज करना हो, तो पहले अपन हाइपर कैपनिक और उसके वजह से टाइप 2 को चूज करेंगे। तो ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा क्या है कि व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर इन गिवन पेशेंट, यानी कि इसके अंदर ये किस वजह से हो सकता है। तो अपन ने ये तो देख लिया कौन सा रेस्पिरेटरी फेलियर है, टाइप 2 है। अगर मान लो ये सवाल नहीं होता, अपन सीधा ये सवाल डील कर रहे होते, तो अपन किस तरह से देखते इसको। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि पेशेंट आईवी ड्रग्स का यूजर है और उसको एचआईवी है। अब एचआईवी देख के कुछ लोगों को क्या लग सकता है कि एचआईवी की वजह से क्या होता है, जो निमोसिस्टिस निमोनिया होता है, यानी कि जो फंगल अपॉर्चुनिस्टिक जो निमोनिया होता है वो हो सकता है। तो सबसे पहले लोग ये सोचने लग जाएंगे कि शायद इसको एचआईवी है तो इसको निमोनिया होगा, और निमोनिया की वजह से टाइप 1 होता है। तो अपन को उस तरह से इस क्वेश्चन को डील नहीं करना।
अपन को कैसे करना है, ये चीज़ें इसकी फाइंडिंग्स देख के, PaCO2 उसका ज़्यादा है तो पहले इंडिकेट कर रहा है टाइप 2 होगा। टाइप 2 के कौन से कॉज अपन ने पढ़े हैं, वो अपन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या है। अब ऑप्शन में क्या क्या आ गया टाइप 2 का, अस्थमा, COPD। टाइप 2 का मोस्ट कॉमन लंग डिजीज था, अपन ने पढ़ा था, तो अस्थमा तो COPD है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये किसका हो सकता है, ये टाइप 1 का हो सकता है। निमोनिया टाइप 1 का हो गया, ये नार्कोटिक ओवरडोज। अब यहाँ अस्थमा और नार्कोटिक ओवरडोज में से अपन को चूज करना है, लेकिन अब सिम्टम देख के बताएंगे अपन। बंदा है अनरिस्पॉन्सिव और आईवी ड्रग्स की उसकी हिस्ट्री है, तो आईवी ड्रग्स से क्या नार्कोटिक ही लेता होगा, ड्रग तो वही हुआ, और उसके रेस्पिरेटरी रेट भी कम है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसके डायरेक्टली जो उसने आईवी ड्रग्स नार्कोटिक्स लिए हैं, उसकी वजह से उसके रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे इफेक्ट होके और उसकी रेस्पिरेटरी रेट कम हो गई। तो नार्कोटिक ओवरडोज है, वो इसका कॉज हो सकता है। तो टाइप 2 है और उसका कॉज क्या है, नार्कोटिक। थैंक यू सो मच। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल था और जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो समझने में ईजी था।